श्री शक्तिकांत दास जी। A very warm good morning and namaskar. On behalf of the Central Board of the Reserve Bank of India, I have the privilege of welcoming the Honorable Prime Minister to this event to launch two major initiatives of the Reserve Bank of India, and both the initiatives are people-centric. Sir, your participation and presence in this event is a source of great motivation for all of us in the Reserve Bank of India. I would also like to welcome the Honorable Finance Minister for her participation in this event and also thank her for her continued support. We are also honored by the esteemed presence of Honorable Ministers from central and state governments, other financial sector regulators, senior government officials, MDs and CEOs of scheduled commercial banks, and various other regulated entities of the Reserve Bank of India and other dignitaries. A warm welcome to all the viewers from across the country. The Reserve Bank, with its multifarious role, touches the lives of people in varied ways, be it through the currency system, the banking system, the financial markets, or the 24/7 seamless digital payments. The Reserve Bank has been leveraging technology and innovation for enhancing the efficiency of its services. The recent announcement of a global hackathon contest, namely the Harbinger 2021 Innovation for Transformation, with the theme Smarter Digital Payments on 9th November, is another such initiative by the Reserve Bank to promote innovation. The Reserve Bank's developmental role is focused on further deepening of financial inclusion and undertaking people-centric initiatives. The two schemes being launched today by the Honorable Prime Minister are steps in this direction. The first scheme, namely the Retail Direct Scheme, seeks to widen the investor base for government securities by creating an ecosystem whereby retail investors can easily participate in the government securities market, which is so far dominated by institutional investors. By doing so, India is setting an example in democratization of the government securities market. The other scheme being launched today by the Honorable Prime Minister, that is the Integrated Ombudsman Scheme, focuses on strengthening the grievance redress mechanism for consumers of various services provided by the Reserve Bank regulated entities like banks, NBFCs, and payment system operators. The existing ombudsman schemes are being integrated into a single scheme, which will offer the benefit of a single platform to customers for getting speedy resolution of their grievances. This integrated scheme will reinforce confidence and trust in the financial system of our country. The launching of these two citizen-centric initiatives today will provide further impetus to our journey towards more inclusive and responsive financial system. I once again extend a warm welcome to all the dignitaries, participants, and viewers. Thank you. Namaskar. धन्यवाद गवर्नर महोदय, हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत करने के लिए और आरबीआई की दोनों नई योजनाओं के बारे में अवगत कराने के लिए। अब हम माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से अनुरोध करते हैं कि वह इस विशेष उपलक्ष्य पर आप सभी को संबोधित करें। माननीय वित्त मंत्री महोदया। Honorable Prime Minister, Governor of Reserve Bank, members of the Central Board of the RBI, ministers of Government of India and also the states, industry leaders and other participants. I begin with a word of appreciation for the coordination and cooperation with which the RBI worked together with Government of India, Ministry of Finance during the pandemic, as a result of which many people-centric and sensitive decisions were taken in time with the guidance of the Prime Minister. And as a result, today we see the economy reviving with great
gusto, if I may use the word, and as a result of which the confidence in the Indian economy is very appreciated and is growing not just in India but across the globe. Now, this kind of a inclusive financial thinking and also acting to appreciate the larger agenda of the government for inclusive financial driven growth. So, in this context, if during the pandemic, the Reserve Bank of India and the Ministry of Finance have worked in this kind of a spirit of cooperation, today I see the Reserve Bank of India coming up with two important initiatives, which is just going to underline and also take further this financial inclusion principle. The retail direct that the Reserve Bank is having launched today through the honorable presence of the Prime Minister is something which is going to help two or three things importantly. One, engage with the retailers for retail participation, deepen the bond market, and allow for a fair market determined rates for all the across the yield curve. And therefore, it's an important measure. The retail participation has been hesitant all these years because of the cost involved and because of the traditional intermediary system which has prevailed. Now, this will probably bring in a direct cost-free, convenience-driven, and also build confidence in the retail participation in the government securities. And therefore, it's a major step. I welcome the RBI for having taken this initiative. The second step and the second initiative which the Honorable Prime Minister will be launching is the Banking Ombudsman Scheme. Although it was launched in 1990 and subsequently the RBI came up with include schemes for bringing in the non-banking financial companies and also the payment systems. Later they came up with guidelines for also customer service. This particular step of bringing them together to become an integrated ombudsman service is going to make it easier for the retail participants in banking system and also in the bonds for any complaints that they may have. I appreciate the RBI for having taken these two major initiatives, and I'm grateful to the Honorable Prime Minister for agreeing to launch these two today. Thank you very much. वहां से कोई आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। अंततः वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वह बटन प्रेस करके अपने कर कमलों से दोनों योजनाओं भारत सरकार और आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में हाल के वर्षों में सबसे बड़ा प्रभाव जन धन खाते खोलने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू करने और जैम ट्रिनिटी के निर्माण से आया है। समावेशी विकास का लक्ष्य लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ और नए कदम उठाए हैं। ये पहल सूचना तकनीक की नींव पर लोगों को जोड़ते हुए एक सशक्त और समृद्ध देश बनाने का प्रयास है। आइए जानें ये क्या है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। आज देश में लोगों के लिए निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं। जरूरी ये है कि ये विकल्प सुरक्षित और आसान हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश एक ऐसा विकल्प है जो पूंजी को सुरक्षित रखते हुए अच्छे रिटर्न प्रदान करता है। फिर भी छोटे निवेशक, वेतन भोगी और पेंशन भोगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री को जटिल मानते हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निवेशकों के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू की है, जिससे निवेशक आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत निवेशक न केवल पूरे विश्वास से अपनी जमा पूंजी का निवेश कर पाएंगे, बल्कि देश के आर्थिक विकास में योगदान भी कर सकेंगे।
अब छोटे निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल RBIRetailDirect.org.in द्वारा RBI में अपना गिल्ट अकाउंट यानी प्रतिभूति खाता खोलकर अपने बैंक खाते से सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकेंगे। यह सुविधा निशुल्क है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। वित्तीय समावेशन का एक पहलू सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र है और इसे सरल, सुविधाजनक और सुलभ बनाने के लिए रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम की शुरुआत की गई है, जो मौजूदा लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है। इसके अंतर्गत सेवा में कमी से संबंधित सभी शिकायतों को स्वीकार किया जाएगा। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित 11,352 बैंकों, NBFC और PPI इशुअर्स को चरणबद्ध तरीके से एक मंच पर लाएगी। इससे लगभग 44 करोड़ ऋण खाता धारक, 220 करोड़ जमा खाता धारक और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के सभी ग्राहक लाभान्वित होंगे। शिकायत दर्ज करने तथा उसे ट्रैक करने के लिए सभी ग्राहकों को अब एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते की सुविधा होगी। एक राष्ट्र एक लोकपाल दृष्टिकोण के अंतर्गत RBI चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर यानी CRPC स्थापित किया गया है। ग्राहक अपनी शिकायत RBI के ऑनलाइन पोर्टल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी cms.rbi.org.in पर तो कर ही सकते हैं, साथ ही CRPC के टोल फ्री नंबर पर हिंदी, अंग्रेजी और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायत दर्ज करने हेतु सहायता और उससे जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। ये हैं RBI के कुछ नए पहल, जन जन को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के लिए, जन जन को खुशहाली की ओर मोड़ने के लिए। आज ये पहल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। निश्चित ही ये दोनों योजनाएं डिजिटल भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर बड़े कदम हैं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देश भर से जुड़े लोगों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार जी। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में देश के वित्त मंत्रालय ने RBI और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। अमृत महोत्सव का ये कालखंड 21वीं सदी का ये महत्वपूर्ण दशक देश के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसे में RBI की भी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम RBI देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। साथियों, बीते 6-7 वर्षों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी, उसके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। एक रेगुलेटर के तौर पर RBI अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखता है। मुझे खुशी है कि RBI ने भी सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाने के लिए
सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं और उसमें आज एक और कदम जोड़ा है। आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन एम्बड्समैन ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर्स की हर शिकायत, हर समस्या का समाधान समय पर बिना परेशानी को हो सकेगा। और मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। ये भी आप जानते हैं कि भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गारंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है, यानी छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप नया भारत बनाने के लिए जो जो व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए, इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे। और यही तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए
नागरिक और सरकार की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास है। साथियों, आमतौर पर फाइनेंस की बातें जरा टेक्निकल हो जाती हैं, सामान्य मानवी हेडलाइन पढ़ करके छोड़ देता है, और इसलिए सामान्य मानवी को बेहतर तरीके से इन बातों को समझना और उनको समझाना, मैं समझता हूं आज समय की मांग है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हम जब करते हैं तब इस देश के आखिरी व्यक्ति को भी इस प्रोसेस का हिस्सा हम बनाना चाहते हैं। आप एक्सपर्ट्स इन सारी बातों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन देश के सामान्य जन के लिए भी ये जानना उनकी बहुत मदद करेगा। जैसे उन्हें पता होना चाहिए कि इस योजना के तहत फंड मैनेजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट आरडीजी अकाउंट खोला जा सकता है। ये अकाउंट भी ऑनलाइन खोला जा सकता है और सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त भी ऑनलाइन संभव है। सैलरी वालों या फिर पेंशनर्स के लिए घर बैठे बैठे सुरक्षित निवेश का ये बहुत बड़ा विकल्प है। इसके लिए कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। फोन और इंटरनेट से ही आप मोबाइल फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका काम हो जाएगा। ये आरडीजी अकाउंट निवेशक के सेविंग अकाउंट से भी लिंक होगा, जिससे सेल परचेज ऑटोमेटिक, खरीद फरोख्त का जो काम है ऑटोमेटिक संभव हो सकेगा। आप कल्पना कर सकते हैं लोगों को इससे कितनी आसानी होगी। साथियों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस जितने जरूरी है, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सिस्टम पर सामान्य जन का भरोसा भी, सामान्य जन के लिए सुविधा भी, सामान्य जन के लिए सरलता भी उतना ही आवश्यक है। एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम मजबूत होती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। 2014 के पहले कुछ सालों में देश के बैंकिंग सिस्टम को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया था, आज हर किसी को पता है कि कैसी स्थितियां पैदा हो गई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। बीते 7 सालों में एनपीएस को पारदर्शिता के साथ रिकॉग्नाइज किया गया। रिजोल्यूशन और रिकवरी पर ध्यान दिया गया। पब्लिक सेक्टर के बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया। फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए। जो विलफुल डिफॉल्टर्स पहले सिस्टम से खिलवाड़ करते थे, अब उनके लिए मार्केट से फंड जुटाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंकों से जुड़ी गवर्नेंस में सुधार हो, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी आजादी हो, छोटे बैंकों को मर्ज कर बड़े बैंकों का निर्माण हो, या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना हो। इन सभी कदमों में आज बैंकिंग सेक्टर में नया विश्वास, नई ऊर्जा लौट रही है। साथियों,
बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। बीते कुछ समय में डिपॉजिटर्स के हितों को देखते हुए ही अनेक फैसले लिए गए हैं। वन नेशन वन अम्बर्समेंट सिस्टम, इससे डिपॉजिटर्स को और इन्वेस्टर फर्स्ट के कमिटमेंट को बल मिला है। आज जो योजना लॉन्च हुई है, इससे बैंक, एनबीएफसीज और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में 44 करोड़ लोन अकाउंट और 220 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट, इसके जो धारक है उन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। अब आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं के लिए खाता धारकों की शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और मॉनिटर करने का एक ही प्लेटफॉर्म होगा। यानी शिकायत निवारण के लिए खाता धारक को अब एक और आसान विकल्प मिला है। जैसे कि अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनऊ में हो और वो दिल्ली में काम कर रहा हो, तो पहले होता ये था कि उसको लखनऊ के एम्बर्समेंट को ही शिकायत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान किया है। इससे बैंक और जांच करने वाली एजेंसियों के बीच कम से कम समय में बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा। जितनी जल्दी एक्शन होगा, फ्रॉड से निकाली गई रकम की रिकवरी की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। ऐसे कदमों से डिजिटल पेनिट्रेशन और कस्टमर इंक्लूसिवनेस का दायरा भी बड़े विश्वास के साथ बढ़ेगा, कस्टमर का भरोसा और बढ़ेगा। साथियों, बीते सालों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन से लेकर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और दूसरे रिफॉर्म्स किए हैं। उनकी ताकत हमने कोविड के इस मुश्किल समय में देखी है और उसके कारण सामान्य मानवीय की सेवा करने का एक संतोष भी पैदा होता है। सरकार जो बड़े बड़े फैसले ले रही थी, उसका प्रभाव बढ़ाने में आरबीआई के फैसलों ने भी बहुत बड़ी मदद की है और मैं आरबीआई गवर्नर और उनकी पूरी टीम को सार्वजनिक रूप से इस संकट काल में जिस प्रकार से उन्होंने चीजों को हिम्मतपूर्वक निर्णय किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। सरकार द्वारा जिस क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गई थी, उसके तहत लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। इसकी मदद से 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने अपना उद्यम और मजबूत किया है। इसमें से अधिकतर एमएसएमईज हैं, हमारे मध्यम वर्ग के छोटे उद्यमी हैं। साथियों, कोविड काल में ही
सरकार द्वारा छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिससे 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को केसीसी कार्ड्स भी मिले और लगभग 2.25 लाख करोड़ का कृषि ऋण भी उन्हें मिल गया। पीएम स्वनिधि से करीब 26 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे 26 लाख लोगों को ऋण मिल चुका है। और आप कल्पना कर सकते हैं, कोविड का इस संकट काल के बाद 26 लाख से ज्यादा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को इतनी बड़ी मदद मिल जाए, कितना बड़ा उनके लिए संबल हो गया। इस योजना से उन्हें बैंकिंग सिस्टम से भी जोड़ दिया है। ऐसे अनेक इंटरवेंशन ने गांव और शहरों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, 6 साल पहले तक भारत में बैंकिंग, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा हुआ करता था। देश का सामान्य नागरिक, गरीब परिवार, किसान, छोटे व्यापारी, कारोबारी, महिलाएं, दलित, वंचित, पिछड़े, इन सबके लिए ये सब सुविधाएं बहुत दूर थी। जिन लोगों पर इन सुविधाओं को गरीब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना आए, गरीब तक जाने के रास्तों को बंद करने के लिए जो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, भांति भांति के बहाने, यही एक परंपरा हो गई थी। और क्या कुछ कहा नहीं जाता था, खुलेआम बेशर्मी के साथ कहा जाता था, अरे बैंक की ब्रांच नहीं है, स्टाफ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, न जाने कैसे कैसे तर्क दिए जाते थे। अनप्रोडक्टिव सेविंग्स और इनफॉर्मल लैंडिंग, इससे सामान्य नागरिक की स्थिति भी खराब हो रही थी और देश के विकास में उसकी भागीदारी भी न के बराबर थी। पेंशन और बीमा का तो यही माना जाता था कि ये सब समृद्ध परिवारों के भाग्य में ही है, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ईज ऑफ एक्सेस भारत की पहचान बन रही है। आज अलग अलग पेंशन योजनाओं के तहत समाज का हर व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 60 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली पेंशन की सुविधा से जुड़ सकता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 38 करोड़ देशवासी, 38 करोड़ कंट्रीमैन 2-2 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की सुविधा पहुंच रही है। पूरे देश में आज लगभग 8.5 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स, जो देश के हर नागरिक की बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। जन धन योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोले गए, जिसमें आज
गरीब के हजारों करोड़ रुपए जमा है। मुद्रा योजना से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों में व्यापारियों, कारोबारियों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। और स्वनिधि योजना से रेहड़ी, ठेला, फेरी चलाने वाले भी इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग से जुड़ पाए हैं। साथियों, लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब डिजिटल एम्पावरमेंट जुड़ गया तो उसने देश के लोगों को एक नई ताकत दी है। 31 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड, करीब 50 लाख पॉस एमपॉस मशीन्स ने आज देश के कोने कोने में डिजिटल ट्रांजैक्शन को संभव बनाया है। यूपीआई ने तो बहुत ही कम समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है। सिर्फ 7 सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में 19 गुना की छलांग लगाई है, 19 टाइम। आज 24 घंटे, 7 दिवस और 12 महीने देश में कभी भी कहीं भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चालू रहता है। इसका लाभ भी हमने कोरोना के इस काल में देखा है। साथियों, आरबीआई का एक संवेदनशील रेगुलेटर होना और बदलती हुई परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखना देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। आजकल आप देख रहे हैं कि फिनटेक जैसे क्षेत्र में हमारे भारतीय स्टार्टअप्स कैसे ग्लोबल चैंपियन बन रहे हैं। इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। हमारे देश के युवाओं ने भारत को इनोवेशंस का ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। ऐसे में ये जरूरी है कि हमारे रेगुलेटिंग सिस्टम्स इन बदलावों के प्रति जागरूक रहें और फाइनेंशियल सिस्टम्स को विश्व स्तरीय बनाएं और उसको बनाए रखने के लिए सूटेबल इकोसिस्टम का निर्माण करें, उसे सशक्त करें। साथियों, हमें देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखना ही होगा। निवेशकों के भरोसे को निरंतर मजबूत करते रहना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक संवेदनशील और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में भारत की नई पहचान को आरबीआई निरंतर सशक्त करता रहा है और मुझे विश्वास है सशक्त करता रहेगा। एक बार फिर इन बड़े रिफॉर्म्स के लिए मैं आप सबको, सभी स्टेक होल्डर्स को, इनिशिएटिव लाने वाले सबको, टेक्नोलॉजी की एक छलांग लगाने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्साहवर्धन एवं शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, कार्यक्रम में पधारे गणमान्य अतिथिगण एवं वर्चुअल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े सभी दर्शक गण का तहे दिल से धन्यवाद।